Secretary of the Hansraj College Alumni Association, and on behalf of the Alumni Association, I welcome you all to this webinar, which has been initiated as Alumni Talk by the Executive Committee of the Hansraj College Alumni Association. I request our President, Sir, Shri Mahinder Goyal ji, to start the webinar series. Over to you, sir. नमस्कार, मैं तहे दिल से I am feeling proud, privileged to welcome you all my alumni brothers and even other guests who have come on our behalf and have spared the time for attending this webinar, because it is giving us an opportunity to connect with each other in this tough time of Corona. आप लोगों के स्वागत में मैं बस 4 लाइनों में ये कह सकता हूँ कि गा सकूं आपका नगमा, वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं कुछ आपको, वो अंदाज कहाँ से लाऊं, यूं तो चांद तारों की तारीफ करना आसान है, कर सकूं आप सब लोगों की तारीफ, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, मतलब दिस इनिशिएटिव हैज बीन डन टू हैव ए बेटर स्कोरिंग इन आवर रैंकिंग and to get connected with each other while Corona has really shut down our many of the activities, but it has given birth to this kind of mechanism where we are getting connected. And this is a webinar series, and we are starting with Rajiv ji. I'll only request and make a fervent appeal to do all possible good to the college by your time, by financially, or by attributing in any of the activity which brings good to the college. We have got the best of the environment now with the overall support and absolute support of our worthy principal. And in charting out this webinar series, we have got the contribution of everybody, but few of us, few of the real workers who have really contributed a lot is Dinesh Chopra, Prashant Doshi ji, and Nitin Malik, of course, with the principal ma'am, and behind the curtain and behind the scene is Dr. Chetna Jain. I appeal once again, because we are having the external threats also, and for that, we have to take a pledge to stand by for any cause of the country. और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम इससे दूंगा कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी. Thank you very much for joining. Once again, I welcome you all, and I request now our worthy principal for her vibrant speech, which we are waiting for, and we get enormously enlightened by that. Over to ma'am. Thank you, Mahinder sir. Dr. Chetna, आपका वीडियो आपने म्यूट पे किया हुआ है मेरे ख्याल से. हाँ जी मैम, ऑफ पे है. आप आइए प्लीज. सर कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है तो वो स्क्रैच. अच्छा, कोई नहीं. Mr. Mahinder Goyal, President, Alumni Association, Hansraj College, Mr. Prashant, Dr. Nitin Malik, Secretary Dr. Chetna Jain. आप सबका पहले तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि हंसराज कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से जो आप लोगों ने ये इनिशिएटिव किया. सबसे पहले स्पेशल थैंक्स प्रशांत दोशी जी का, जिन्होंने एक बार ये प्रपोजल आते ही उसको एक्सेप्ट किया. बहुत कम टाइम में उन्होंने अपनी टीम दिनेश जी के साथ और नितिन जी के साथ इनिशिएटिव लेते हुए आज हमारे साथ जोड़ा राजीव चावला जी को. राजीव जी, आपका हंसराज कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आपने 1980-1983 के बीच में हंसराज कॉलेज से बॉटनी ऑनर्स किया. और मैं मान के चलती हूँ कि 1980-83 में जब आपने बॉटनी ऑनर्स किया होगा, तब भी 1948 में एस्टेब्लिश हुआ हंसराज कॉलेज. एक लंबी यात्रा कर चुका था, लेकिन अब 2020 में तो उसने बहुत लंबी यात्रा कर ली है. और 2020 जिसमें कोविड-19 है, कोरोना है, कोरोना जिसको सब महामारी कहते हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं, अब महामारी से अलग कर कोरोना कह रहा है अब कुछ करो ना. किसके लिए करो ना? हंसराज कॉलेज के लिए.
Great. हंसराज कॉलेज की एलुमनाई एसोसिएशन इस समय एक्टिव है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिस तरह से प्रशांत जोशी जी, नितिन मलिक जी इसके लिए सोचते हैं, करते हैं। नितिन मलिक जी की जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी के आप रजिस्ट्रार हैं और हंसराज कॉलेज के मेरे देखते देखते बड़ी मेहनत से आप रजिस्ट्रार बने हैं। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना तो करते ही हैं, लेकिन राजीव जी, बॉटनी ऑनर्स करने के बाद मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। प्रशांत जोशी जी आज जब आपका इंट्रोडक्शन देंगे, हम सब आपके सीवी से रूबरू होंगे, उस समय में बहुत खुशी होती है जिस समय हंसराज कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। और मोदी जी ने तो आज कहा है कि युवा को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी ने राजीव चावला जी को जरूर कहीं देख लिया होगा। राजीव जी ने तो बहुत पहले ही इस मिशन को शुरू कर दिया था। मुझे लगता है हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट का अपना एक अलग विजन होता है। इसलिए कल जब मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक सिग्नल मिला कि राजीव चावला जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ईश्वर राजीव जी को अवश्य ठीक करेगा, क्योंकि आज उन्होंने हंसराज कॉलेज की एक जो हमने कनेक्टिविटी एलुमनाई एसोसिएशन का जो कनेक्टिविटी के साथ एक नया प्रोग्राम बनाया है, और प्रशांत जोशी जी ने जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए फर्स्ट लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, जो नींव बनती है, वो नींव किसी भी इमारत की बैकबोन होती है, वो बहुत मजबूत होती है तो इमारत बहुत मजबूत होती है। मुझे लगता है उस स्ट्रॉन्ग नींव के लिए ही, उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ही प्रशांत जोशी जी ने राजीव चावला जी को चुना है। तो राजीव चावला जी आज का लेक्चर जरूर देंगे। ईश्वर उनकी हेल्थ भी ठीक रखेगा। पूरे हंसराज कॉलेज की तरफ से राजीव जी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं हंसराज कॉलेज की एलुमनाई एसोसिएशन को सबको बधाई देती हूँ। इससे जुड़े हुए एक एक सदस्य को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सबसे मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि हम सबका अब एक विजन है। विजन क्या है कि हम सब अब जीने की बात करेंगे, साथ जीने की बात करेंगे। हमारे जो हर सांस है, ईश्वर करे, जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे किसी भी सदस्य को जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। ईश्वर करे आपको दुनिया के तमाम सुख सुविधाएं मिलें, लेकिन आप याद रखना, जिसमें आपने अपनी यंग एज के कुछ सपने बुने, यंग एज में आपने कई सुलझी अनसुलझी शरारतें की होंगी, कितना कुछ आपने यहाँ सोचा होगा, कितनी आपने मस्ती मारी होगी, कितना किसी को परेशान भी किया होगा, किसी से परेशान हुए भी होंगे, कितने लोगों ने यहाँ से अपने लाइफ पार्टनर्स चुने होंगे, कितने लोगों ने देखते देखते मस्ती करते हुए अनेक सपने देखे होंगे। आपके उन्हीं सपनों के साथ, आपके साथ साथ हंसराज कॉलेज बड़ा हो रहा है। हंसराज कॉलेज की यात्रा आगे बढ़ रही है। अब हमने छोटी छोटी चीजें नहीं सोचनी है, अब हमने छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। अब हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सबका हंसराज आगे बढ़े, हम सबका हंसराज 21वीं सदी के भारत को लीड करे। हम सबके एक एक सदस्य को किसी भी तरह की अगर कोई आवश्यकता हो, हमारी कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कोविड-19 ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इंडियंस जो इतना ऑनलाइन मोड पे नहीं रहते थे, अब हम सभी इंडियंस कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में रहने की। और ये ऑनलाइन मोड ऐसा है, पूरे विश्व में हंसराज कॉलेज का कोई भी मेंबर कहीं भी हो, हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे ही सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो, फिर से हम आपस में एक दूसरे को देखकर खुश हों, तो मुझे लगता है राजीव चावला जी अवश्य ही कॉलेज में आएंगे, अपने ही कॉलेज को जरूर देखेंगे, अपने कॉलेज के अपने यंग स्टूडेंट्स को देखेंगे। और मैं आप सबसे जैसा कि हमेशा कहती हूँ, आप जहां भी हो, किसी भी जगह पर हम हो, हमें वहां कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम उस जगह से हंसराज कॉलेज को जोड़ सकें। हम मेरी इच्छा होती है, और वह दिन मुझे दूर नहीं है। आप सब इतने यंग लोग, इतने एक्टिव लोग, इतने एनर्जेटिक लोग हंसराज कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन में हैं। हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स आज हर जगह पहुंचे हुए हैं। मैं चाहती हूँ
कि हंसराज कॉलेज की एलुमनाई एसोसिएशन पूरे देश की दी बेस्ट एलुमनाई एसोसिएशन बने, क्योंकि यदि किसी भी इंस्टीट्यूट को देखना हो कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, उस इंस्टीट्यूट का विजन कैसा है, उस इंस्टीट्यूट की दशा और दिशा कैसी है, तो मुझे लगता है उस इंस्टीट्यूट की एलुमनाई एसोसिएशन देख लेनी चाहिए। जैसी एलुमनाई एसोसिएशन होगी वैसा ही वो इंस्टीट्यूट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आज जब हम राजीव चावला जी का लेक्चर सुनेंगे, ये हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आने वाले समय में हंसराज कॉलेज पूरे देश का दी बेस्ट कॉलेज, न केवल कॉलेज की दृष्टि से बल्कि एलुमनाई एसोसिएशन की दृष्टि से भी बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं प्रेसिडेंट महेंद्र गोयल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो सबको प्रेरित करते रहते हैं। मैं प्रशांत दोषी, नितिन मलिक जी और दिनेश जी, इनकी पूरी टीम, इन तीनों की टीम को विशेष धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहूंगी कि इन्होंने ये जो लेक्चर सीरीज का इनिशिएटिव लिया है, इस लेक्चर सीरीज के इनिशिएटिव के लिए सच में प्रशांत जी, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम हंसराज कॉलेज की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बीच से जुड़ते हुए एक कनेक्टिविटी बनाएंगे, क्योंकि हमारा पास्ट जो है बहुत ही गोल्डन पास्ट रहा है, प्रेजेंट भी हमारा गोल्डन है, तो आने वाले टाइम में डायमंड हमारे सामने होगा। हंसराज कॉलेज का फ्यूचर आप लोगों के हाथों में है। ईश्वर करे आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और हम हमेशा एक दूसरे से रूबरू होते हुए, एक दूसरे के विजन को बड़ा बनाते हुए, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को हम बड़ा बनाएं और एक बड़े विजन को लेकर हम आगे चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव जी, आपका एक बार पुनः हंसराज कॉलेज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, आपका विशेष स्वागत, सादर नमस्ते, धन्यवाद। Thank you so much. हेलो। Yeah. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत दोषी जी, जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस वेबिनार सीरीज को फ्रेम करने के लिए, संक्षिप्त में हमारे राजीव चावला जी का द स्टार अट्रैक्शन ऑफ टुडे वेबिनार सीरीज एल्यूमिनाई टॉक, to give his valuable introduction so that we all get to know what are his laurels and what are his achievements. So I request Prashant Doshi ji to give a brief introduction about Rajiv Chawla ji. Besides that, I welcome all those who joined a bit later, but I welcome all to be a part of this great gala gathering. Prashant Doshi ji. Hi, good morning to everyone. बहुत सालों बाद शायद एक दूसरे से मिल रहे होंगे। वैसे तो हम हर बार मिलते ही रहते हैं अलुमनाई में। मैम का कहना है कि राजीव हमेशा बहुत बार आए हैं, राजीव कॉलेज के अंदर आते रहे हैं। मैं वेलकम करूंगा राजीव चावला का। आई वेलकम एज ए प्रशांत दोषी 81 to 84 BCom ऑनर्स ऑन बिहाफ ऑफ HRC अलुमनाई एसोसिएशन। वेलकम राजीव चावला। ही इज द, वैसे तो उसको मतलब राज चावला जी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन he is associated with alumni for so many years, and he is the chairman and the founder of Jairaj Group and I'm Asma of India. ज्यादा नहीं बोलूंगा because मैं चाहूंगा कि चावला राजीव ज्यादा बोले। सभी everyone is waiting कि ज्यादा से ज्यादा उनसे सुन सके। मैं केवल यही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच। आप सबने ज्वाइन किया और मेरे बारे में बताया गया कि प्रिंसिपल मैम ने भी, महेंद्र जी ने भी कहा कि मैंने इनिशिएट लिया। मैंने इनिशिएट अपने कॉलेज के लिए लिया है। बेसिकली मैं दिल से विचार करके हमेशा इस बारे में मैं सोचता रहता हूं कॉलेज के लिए, और मैं अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव, थैंक यू वेरी मच टू एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट. And I give so many requests to so many people, and everyone is giving me full-heartedly say yes, and I will try to continue this series as an alumni of the college. And I am welcome again Rajiv Chawla. Please go ahead. Thank you so much, and namaskar to everyone. Thank you so much, Prashant ji, for this great introduction. Thank you so much, Mahendra ji,
for inviting me to this forum. And of course, Rama ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful introduction about the college, about the journey that it has taken. And then, of course, Chetna Jain ji, who's been extremely patient and we are connecting with me, and in fact, changing the platform also at the last moment. My heartiest greetings to everyone who's here. Pallav Bagla, Nitin Malik now, who is a veteran educationist, and I hear he's now the new VC of the new university, Dr. Ambedkar University. And Nitin Malik ji, my compliments and my congratulations to you on this new assignment. सभी दोस्तों को, बहुत से मेरे दोस्त हैं, मैंने अभी देखा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया अशोक पोदार जी का, वो तो मेरे भी सीनियर हैं और वो जगत सीनियर है, तो वो भी शायद इस प्रोग्राम में है. सो थैंक यू सो मच पोदार जी फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम. और प्रशांत जी ने मेरा परिचय बहुत कम दिया. एक्चुअली वो इसलिए कम था क्योंकि कुछ बताने लायक है भी नहीं, तो मैं केवल अपना नाम ही बताऊं कि मेरा नाम राजीव है, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज देयर. उसके ज्यादा नो, मैंने इसलिए नहीं दिया है, मैंने इसलिए नहीं दिया है कि आप अपने आप से देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ज्यादा अच्छा लगेगा. यस यस, दैट वाज माय ऑप्शन, बिकॉज़ मैं चाहता हूं आपके मुंह से ज्यादा सुने. नहीं प्लीज, आई एम जस्ट जोकिंग. और मैं हंसराज कॉलेज 1983 बैच में मैंने बॉटनी ऑनर्स किया. And I remember Dr. G.P. Chopra ji was the principal at that time, and Dr. M.K. Uberoy was the vice principal, and Dr. Y.P. Oberoi was the head of our department. In fact, मुझे सबसे अच्छा लगा जब आज मॉर्निंग में मुझे डॉक्टर ओबरॉय जी का कॉल आया पर्सनली, एंड उन्होंने बताया कि आज इस तरह से वेबिनार मैं कर रहा हूँ. So he greeted me, and such a pleasure. And I think we are so lucky. We are so lucky. ये हम सभी जितने लोग हंसराज के एलुमनाई एसोसिएशन में हैं, हंसराज के एलुमनस हैं, हम सब लोग इतने लकी हैं कि हमने बेस्ट टीचर्स से सीखा है. And I have no hesitation in saying that all of what I am in life and all of what I have ever achieved is only because of my parents and my teachers, and that's it. And wonderful statement. And it is true. Right from school days to the college days, we have been trained by the best and the best ever. और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने एक कदम रखा तो एक मील का पत्थर पा लिया. So we have achieved much more than what we actually deserve. Actually, this is something I can say for myself. And thank you so much. I also must mention that हमारे जो एलुमनाई एसोसिएशन है, उन्होंने सभी वेटरन्स को बुलाते हैं. मैं बहुत से सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जो हंसराज के हैं, बहुत से आईएएस और सिविल सर्वेंट्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बहुत से और बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, जिनको हमारे कॉलेज ने से निकले. तो वो सब हम सबके लिए दे आर अ मैटर ऑफ pride and privilege. And I am just a small entrepreneur who's come out from the college. But then, yes, I am a survivor. I have been a survivor in the world of entrepreneurship. And I'll talk about my journey. In fact, it's not about my journey. I'm not going to speak for myself. कि मैं कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ गया. अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप मेरी ऑटोबायोग्राफी सुने या पढ़ें. लेकिन जो मेरे learnings हैं, I'll just be sharing some of those learnings with you. I want to mention that it's a very tough time. And imagine the situation of someone who's in the final year college, चाहे वो engineering college में है या हंसराज में है या किसी भी यूनिवर्सिटी में है, या वो स्टूडेंट जिसने इसी साल या लास्ट ईयर पास आउट किया. And the minute they passed out or they are ready to pass out from the college, that is the time when the whole world has started losing jobs. And this is the year of job losses, like never before. And I pray never again. This is the time, this is the year of job losses. And it is such a challenging time, such a traumatic time, I can imagine,
for those students, especially who are just passing out from the college or who just cleared their engineering or other degrees. And the minute you start coming out, at your time, hell happens. And this is exactly what the situation is. So the point is, there are two things here. Will they be able to find their way in this darkness? This is one. And second, more important is, have we trained them and educated them correctly and educated them enough so that they are able to find their way? हमने आज तक अगर उनको 12 साल स्कूल में पढ़ाया और 15 साल किसी कॉलेज में पढ़ाया, मैं एक स्टैंडर्ड एजुकेशन 10+2+3 की बात कर रहा हूँ, तो 15 साल या 16 साल के बाद जब आज एक सडनली स्टूडेंट बाहर आ रहा है और उसको मान लीजिए कुछ डार्कनेस दिखी, तो क्या वो इस अंधेरे में रास्ता ढूंढ पाए? क्या हमने उसको राइटली एजुकेट किया आज तक या उसको राइटली तैयार किया? तो ये अपने आप में एक सवाल है दोनों वर्गों के लिए। तो मैं आज उन एस्पायरिंग स्टूडेंट से, उन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से या उन एस्पायरिंग करियर जो लोग ढूंढ रहे हैं, उन लोगों से भी बात करूंगा और उनसे भी करूंगा और अपने से भी करूंगा कि हम इस जनरेशन के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इस तरह के अंधेरे में अपना रास्ता खुद ढूंढ पाए। मेरे पास एक छोटी सी पीपीटी है और अगर विच आई जस्ट शेयर विद यू, सो जस्ट गिव मी, आप मुझे होस्ट से रिक्वेस्ट है कि या तो मुझे को होस्ट बना दें या मुझे शेयरिंग राइट दे दें। सो माय रिक्वेस्ट टू दी होस्ट इज that if you can just allow me to share my screen. डॉक्टर राजीव जी, चेतना, चेतना अमित जुड़े हुए हैं आपके साथ? हाँ जी मैम, मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम, हाँ मैं बात कर रही हूँ मैम। हाँ, अगर आप मुझे होस्ट राइट दे दें। इस समय हंसराज कॉलेज के होस्ट है। सर आप पैनलिस्ट में हैं तो आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं होस्ट हैज डिसेबल्ड दी attendee screen sharing. ठीक है सर। सर आप कर सकते हैं, सर आप कर सकते हैं, प्लीज शेयर, प्लीज चेक कीजिए एक बार। सर मैं चेक, ओके, यस, नाउ आई कैन, थैंक यू सो मच, एंड आई जस्ट टेक 1 second. meanwhile I take this opportunity, hello. Yes, please. I take this opportunity that the concluding remarks with the vote of thanks will be done by none other than our Dr. Nitin Malik, another star of our Alumni Association and Vice President. So please remember, the concluding and the vote of thanks will be done by Dr. Nitin Malik. Noted, sir. Thank noted. you so much. Thank Noted, you so sir. much, sir. And Dr. Nitin Malik जी, ये आपके लिए एक पनिशमेंट भी है कि अब आपको कम से कम एंड तक रुकना पड़ेगा मेरे लिए। Oh no, नहीं राजीव जी, we are too agog to hear you. Sir, it's my pleasure. It's my pleasure to see such a. Whenever I see you, I find you more younger and younger. I don't know. I'm going to ask you. The more we see you going in a reverse rather than going forward. My God, age is not able to impact you. That is a wonderful thing. That's so kind of you. That's Please, so kind please. of you. Go ahead. अगर लाइफ स्ट्रेस फ्री रखो तो ऐसे ही रहेगा। Okay, you know, we are at a time when we are the youngest nation in the world, and if you take the average age of our population, it's just about 23. So at 23 years, within average age, India is host to the youngest population in the world, and then this gives us a huge powerhouse of citizens who are in India. And then also it is a huge challenge for many of us, to understand the young world. And this is very, very special. And so India has a young world, and so the new generation is coming, and they are ready to replace us. And it's going to be very hard for us. They start very young nowadays. They don't wait to learn. They know how to enjoy.
They know how to fight. They aim far and high. And do you know what they say to us? This is actually what the young generation is. So we are at a time when it is not about teaching them. It's only about perhaps showing them the way, or maybe try to inspire them if you can. So the world is different. The youth is different. The youth has access to information at their fingertips. You know, when we were in college in 1980, library was the only knowledge bank, and there would be a few books. So if you really wanted to move out, you had to go to the library, take a book, and if one student would take that book or one professor gets the book issued, no one else had access to that information. So that book was the powerhouse. So whoever could carry that book or learn from that book could, rule. Today, it's no more. I mean, if you have a Google at hand, a smartphone at hand, you have access to the information. I'll request host के सबको आप अगर mute कर देंगे तो disturbance नहीं होगा. So today Google is God. भगवान के बारे में हमेशा कहते हैं कि भगवान हर जगह है, भगवान को सब मालूम है और भगवान सब जानते हैं. Omnipresent, omniscient. मुझे लगता है कि ये चीजें अब गूगल के बारे में है. गूगल सब जानते हैं, गूगल हर जगह है, गूगल को रोड मैप भी मालूम है, गूगल से कुछ भी पूछ लो वो जवाब दे देते हैं. मैं पिछले साल यूरोप में किस कंट्री में गया, मैं दोबारा उस कंट्री में जाता हूँ तो मुझे वो फेवरेट स्पॉट्स की जगह गूगल अपने आप प्रॉम्प्ट करने लगता है. मैं किसी वर्ड पर क्लिक कर दूं तो मेरे फेसबुक पर वही एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं. दिस इज व्हाट द वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट, and that is what is the power that is in your hand. In my time, no phones, no computers, no laptops, nothing, no Facebook, no Tinder, just and God knows what all we have missed in our time. But then today's youth is very lucky, and they have a lot of these things at their hands. Let's take a look into the future as we are sitting today, poised to be in 2020. We are presently amongst a perfect storm. There is uncertainty, there is darkness, no one knows what will happen tomorrow. Vaccine आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, कितने लोगों तक पहुंचेगी, कितना टाइम लगेगा कि फिर से हम लोग कॉलेज में फंक्शंस करेंगे, कॉन्सर्ट्स करेंगे, पब में जाएंगे, डिस्कोथीक में जाएंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर से मिलेंगे, मेट्रो में फिर से कब भीड़ होगी, कैसे वो लाइफ क्या कभी आएगी नहीं आएगी, क्या जॉब्स दोबारा से पहले की तरह मिलेंगी, क्या कैंपस इंटरव्यूज होने लगेंगे, वो सब कैसे वो टाइम आएगा. तो अभी इनके आंसर्स बिलीव मी किसी के पास नहीं है. और एक दिन हम सुनते हैं कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च होगी, दूसरे दिन सुनते हैं कि नहीं अभी तो वैक्सीन आने में बहुत वक्त लगेगा. तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी अनसर्टेनिटी है, और इस अनसर्टेनिटी को मैं एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह सामने देख रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल्सो द ईयर ऑफ जॉब लॉसेस. बहुत से लोगों की जॉब चली गई हैं, बहुत से लोगों की सैलरीज कम हो गई हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन, इवन कई गवर्नमेंट्स अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं. मुझे उस दिन कुछ कॉलेजेस के प्रोफेसर भी बता रहे थे कि उनकी भी सैलरीज पार्ट पेमेंट मिल रही है. My daughter, and she is a doctor, and she is a pulmonologist, and she handles COVID patients. और लास्ट 3 महीने उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, और हम लोग भी एज पेरेंट्स डरते भी है, लेकिन वो लोग बड़ी हिम्मत से she is a pulmonologist and she is handling COVID patients day in and day out. And you will be surprised if I tell you that even her salary has been cut by 35%. So जिनके लिए लॉकडाउन नहीं है, हाई रिस्क टाइम है, उनकी भी सैलरीज कम हुई. So this is actually a very, very challenging time for the world around. And therefore, it was very important
to organize a talk on this subject today with Hansraj College students and others who are around, that how we can look forward in this year. For those in businesses, in institutions, in private sector, even government companies, all businesses are in rent. In fact, every business will see huge losses, चाहे वो public sector company है, चाहे private sector company है, government institutions हैं, revenues हैं, hospitals के revenues गिर गए, और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ये सुन के यकीन नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल में क्योंकि अब नॉर्मल पेशेंट्स नहीं जाते हैं, ओपीडी पेशेंट्स नहीं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, लोग अपने अगर बहुत क्रिटिकल नहीं है किसी चीज का इलाज तो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इवन हॉस्पिटल्स का भी रेवेन्यू गिर गया. तो इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. स्कूल्स में बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं अब देनी है, नहीं देनी, स्कूल कब खुलेगा, बंद दिनों में स्कूल की फीस देनी है नहीं. So there are many challenges for every individual, every institution as it stands today. And amidst all this, our Honorable Prime Minister gave a call to build a self-reliant India. एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत बनाएं जो अब आत्मनिर्भर बने. और उन्होंने एक और बड़ी अच्छी कॉल दी, vocal about local, and local should become global. So it's a great call. And उन्होंने हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी बोला कि हम भारतीय प्रोडक्ट्स को, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को, भारतीय कंपनियों को, भारत के लोगों को पूरे वर्ल्ड तक हम क्यों नहीं ले जा सकते. अब हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, भारतीय सिटीजन्स हैं, आप कितनी भी बड़े कॉर्पोरेशंस को देखें, आज उनको लीड करते हैं ग्लोबली, लेकिन भारतीय बिजनेसेस को भी इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बनना है. ये कॉल प्रधानमंत्री जी ने दिया. और इसीलिए मैं हमेशा कहता था, और मेरा हमेशा मिशन रहा है कई सालों से, बेरोजगार से स्वरोजगार, फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन की है. काश नौकरी न लगी होती पीएम की, या काश कहीं छोटी सी क्लरिकल जॉब न लगी होती, तो मे भी आज वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे होते. तो कभी कभी छोटी सी अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ लॉन्ग पकड़ भी सकती है. तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये कॉल, नेशनल कॉल हमारा होना चाहिए, बेरोजगार से स्वरोजगार, फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और आज के टाइम के लिए अगर मैं कहूँ कि हमें जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं, फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर. क्या ये ट्रांजिशन हम आज हंसराज के स्टूडेंट्स, आज अगर मैं हंसराज की बात ही कर रहा हूँ कॉलेज की, और प्रिंसिपल रमा मैम भी यहाँ है, तो क्या हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपने कॉलेज को कि जहां पर पढ़ने वाला बच्चा वो जॉब सीकर बनकर ना निकले, वो जॉब क्रिएटर बन के निकले, उस माइंडसेट से निकले. और मैं इसके लिए कहूंगा प्रार्थी से प्रेरक. प्रार्थी मीन्स एन एप्लीकेंट. तो फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर, प्रार्थी से प्रेरक. वी हैव टू इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स टू बिकम इंस्पायरिंग जॉब क्रिएटर फॉर द वर्ल्ड. And this is my slogan, and this is, if you can call it, this is my theme for today's talk. What next? क्योंकि सिर्फ बातें करने से दुनिया नहीं चलती, कुछ करना पड़ता है. Action is what makes the world happen, and therefore we have to look at where we are. Friends, I look at this as second innings. एक टेस्ट मैच हुआ, पहली इनिंग्स में टीम ए ने 500 रन स्कोर किए, टीम बी ने सिर्फ 200 रन स्कोर किए. टेस्ट फर्स्ट इनिंग समाप्त हुई. अब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई है, और पहली और सेकंड इनिंग्स के बीच में अगर रेन हो जाए तो हो सकता है पहली इनिंग में पेस बॉल ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सेकंड इनिंग्स में स्पिन अच्छा करे. तो अभी मैं सभी के लिए बात कहूंगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज में प्रोफेसर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, या कोई बिजनेस करता है, कि हम सबके लिए सेकंड इनिंग प्रारंभ हो चुकी है. एंड रूल्स ऑफ द सेकंड इनिंग
are different than the rules of the first inning. और ये completely clean चिट बनेगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर पहली इनिंग्स में किसी ने 500 रन बनाए तो सेकंड इनिंग्स में भी 500 रन बनेंगे। हो सकता है आपकी बार वो बहुत जल्दी आउट हो जाए और सेकंड इनिंग में जिसने पहले स्कोर अच्छा नहीं किया वो पहले से बेहतर स्कोर कर सकता है। इस समय जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं, छोटे बिजनेस के लिए अद्भुत अपॉर्चुनिटीज हैं और ये उस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं कि कोई बच्चा भी, और क्योंकि एक जमाने में डिग्री करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, शादी भी नहीं होती थी अगर डिग्री ना हो तो लड़की वाले सबसे पहले देखते थे कि लड़के ने क्या किया है, कितना पढ़ा है, थिंग्स लाइक दोज, ऑल दोज डिग्रीज मैटर। टुडे it's great to be a college dropout. In fact, अगर आप मुझसे पूछें, I love college dropouts, and if you are a school dropout, even better in many ways. So therefore, there are huge changes in today's world, and there are huge opportunities that are coming ahead. Look at this screen. आप जो green side में देख रहे हैं, आप समझ लीजिए ये future है world का। Health sector, food and processing, personal health care, ICT, technology, e-commerce, ये फ्यूचर है। ये वो सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं इस समय में। कोरोना के टाइम में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है जब पूरा देश लॉकडाउन में था, एक टैक्सी वाला भी, एक रिक्शे वाला भी अपने घर में लॉकडाउन था और उसके पास भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ऐसे में ये सेक्टर्स ने अद्भुत ग्रो किया। लेकिन दूसरी तरफ आप रेड देखें तो जिसमें आप देख रहे हैं टूरिज्म एंड लेजर, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और अभी बहुत टाइम लगेगा इन लोगों को बाहर आने में। तो आज अगर कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहा है, कोई होटल है या कोई पब है, ब्यूरी है, रेस्टोरेंट है, सडनली सिनेरियो चेंज हो गया और मुझे नहीं लगता बहुत समय तक अब हम दोबारा से फिर पीवीआर में या किसी सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखना पसंद करेंगे। अब 4 महीने में मुझे नेटफ्लिक्स की और अमेजॉन प्राइम की इतना मजा आ रहा है कि उसमें जो सीरियल्स देख रहे हैं, मुझे ऑर्डिनरी फिल्म पसंद ही नहीं आती है unless there are sequels and unless it's a series. So some of the best is now available on Netflix. And I doubt if people will start going back to cinema halls and other areas. So lot of changes have happened. And this is what the second innings is all about. कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी अद्भुत अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट मेरी जो वाइस चांसलर हैं, हमारे कंट्री की जो पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी वो हरियाणा में है और उसका नाम है हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। और हमारे मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर राज नेहरू, वहाँ के वीसी हैं। तो अभी लास्ट वीक उनका मुझे फोन आया और हम लोग काफी देर से बात कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि किस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपनी स्किल यूनिवर्सिटी में लेके आए। तो अभी तक वो बड़ी टिपिकली वो केबल मैन्युफैक्चरिंग, सीएनसी मशीन चलाना या इस तरह की चीजों को हम स्किल कहते हैं। बट बहुत सारी बातें हुई तो मैंने उनको बताया कि इस समय हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है या बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कितने कोविड सेंटर्स देश में बना दिए गए हैं, तो क्या हमारे पास वहाँ हेल्थ वर्कर भी है उस कोविड सेंटर को चलाने के लिए, और रिप्लेसमेंट है? तो जो हमारी अभी की नीड है और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो हम देश का डिफेंस बजट रखते थे या आज तक रखते रहे हैं, उतना बजट अब हमें हेल्थ सेक्टर के लिए चाहिए। तो अब बहुत सारे सेक्टर्स को अपना बजट कम करना पड़ेगा और हेल्थ सेक्टर को अपना बजट बढ़ाना होगा और सरकारों को भी अपना यही बदलाव देना है। सो दिस इज वेयर द न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड दिस इज वेयर वी हैव टू ब्रिंग आवर स्टूडेंट्स टुडे and the next generation today and show them the path. Let them choose their own, make their own choice. हमारे स्टूडेंट्स को अपना चॉइस खुद करना है, अपना भविष्य खुद चुनना है, लेकिन उनको रास्ता दिखाना, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताना, वो हमारा काम है। तो हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत तेजी से बदलाव भी हो रहा है और बहुत ही ज्यादा
इसमें अपॉर्चुनिटी है। आगे आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा जॉब्स हैं वो इस सेक्टर की। Second is the agriculture, food and natural resources. Amazing opportunity. पहली बार इतने सालों में के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो अब निखर कर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने कोरोना के दिनों में रियलाइज किया कि लाइफ के बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनो। आज मैंने टी शर्ट के साथ इस समय मैं शॉर्ट्स में बैठा हूँ या जीन्स में बैठा हूँ, नोबडी केयर। जरूरत ही नहीं है वो टाई लगाना, वो लगाना। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में अब दोबारा कोई नई टाई कभी लूंगा, बिकॉज जरूरत ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है टाई लगा के। आपको घर पे बैठ के बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सेमिनार्स करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो क्या जरूरत है आज मैं अरमानी की बेल्ट पहनूं, आर्म्स की बेल्ट पहनूं, या मैं बेल्ट नहीं पहनूं? You know, lot of things are going to change. Next time मैं शूज कब लूंगा, फॉर्मल शूज कब लूंगा? मुझे नहीं लग रहा इस लाइफ टाइम में मुझे दोबारा फॉर्मल शूज लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये वो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जो अभी तक हम हर संडे को जब मॉल में मूवी देखने के लिए जाते थे तो मूवी भी देख लेते थे और शॉपिंग करके कुछ घर पे ले आते। So gone is that era, and I doubt if that era is going to come back soon, maybe never. And therefore, these are the basic sectors जहां पर अब इंडिया को फोकस करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली इतने मुश्किल टाइम में भी हमारे पास रिकॉर्ड फूड ग्रेन स्टोरेज है, and now is the time to add value to that and to add food processing to that and export to the world and sell to the world. This is the time, this is the opportunity for our India. The mobility. Are we going to come back on bicycles and two-wheelers? And my answer is yes. Motorcycle or a bicycle today is the new mask. It is the new protection. मैं क्यों मेट्रो में या डीटीसी बस में या ऑटो रिक्शा में धक्के खा के जाऊं? मैं क्यों शेयर्ड कैब में जाऊं, sitting with unknown people, and even on my way to office or maybe back home, I get infected and bring infection to my family? I would not like that. So people are now buying bicycles or motorcycles or their own small cars because this is the new protection. Why you should use public transport? Is it important? अभी कुछ टाइम पहले तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की बात करते थे, अब वक्त बदल गया है। आज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था उसे प्रोटेक्शन के लिए अपनी मोबिलिटी की जरूरत है। दिस इज गोइंग टू चेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू कम वेरी वेरी फास्ट एंड दिस इज विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, दिस इज द कॉल ऑफ द फ्यूचर। इंफ्रास्ट्रक्चर, होम्स, गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड कि हम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी रेंटेड अकोमोडेशन बनाएंगे सभी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। हाई एंड प्रोडक्ट, स्मार्ट फीचर्स, थिंग्स व्हिच आर इंटेलिजेंट, थिंग्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दैट। एंड देन दिस इज फॉर टुडेज यूथ, दिस इज फॉर माय स्टूडेंट्स in Hansraj College today. E-commerce, the new services, the new skills, the skilling as an opportunity, the new educational opportunity is skilling. So आप कैसे ये काम कर पाएंगे? There are tremendous opportunities in these three areas. This is the time for youngsters who can, through technology, go and grab jobs in these sectors or become job creators in these areas. Defense production, those in manufacturing. And let me tell you, I'm into manufacturing. In fact, mera parichay pura nahi diya gaya. I want to mention here that I am a botany honors graduate who did post-graduation in advertising and public relations, mass communications, and then who's into manufacturing business today, hardcore component manufacturing for automobile engineering and biomed sector. And so if a botany honors student can take this journey, I am sure each one of you, you are much more talented than I am. You have much more access to technology
than I ever had in those days. And this is what the future is. Fintech, data analysis, artificial intelligence. यकीन मानिए हमारे जैसे डायनासोर्स को सिवाय इनकी डेफिनेशन के कुछ पता नहीं, सिर्फ सुना सुना है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वर्ड्स मालूम है फिनटेक या डेटा एनालिसिस के बारे में. दिस इज द डोमेन ऑफ टुडेज जनरेशन. दिस इज द डोमेन ऑफ द जेन नेक्स्ट, एंड वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग is being done digitally. Intelligence is digital. आज हमारे टाइम में लोन लेने के लिए बैंक में 6 महीने धक्के खाने पड़ते थे. 6 सप्ताह बैंक मैनेजर को चाय पानी खाना खिलाना पड़ता था. 6 दिन तक पैर दबा के उसकी सेवा करनी पड़ती थी. तो तब कहीं जाके बैंक के लोन मिला करते थे. आज आप एक ऐप पर अपना बटन प्रेस करिए, पैन कार्ड डालिए, आधार नंबर डालिए और जस्ट बेसिक डेटा डाल दीजिए तो आपके बैंक में लोन ट्रांसफर हो जाता है. दिस इज व्हाट टुडेज वर्ल्ड इज. इतना फास्ट है आज इस काम को करना, लेकिन ये कैसे आज की जनरेशन कर रही है और कैसे इसमें चेंजेस आएंगे, ये इस जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, जिसको हम कहते हैं आजकल द न्यू नॉर्मल. कि अब आज के बाद नॉर्मल सी हम किसको कहेंगे? पहले की तरह मेट्रो चले, पहले की तरह भीड़ लगे, ट्रैफिक जैम लगे, क्या वो नया नॉर्मल होगा? बैक टू द ओल्ड कचरा इज नॉट द न्यू नॉर्मल. न्यू नॉर्मल is going to be very, very different. And that is what I want to share with everyone, that we have to learn some things and we have to unlearn some things. So pehli cheez we should know is that things will never be the same again. Never. The world has changed forever. Second very important thing is that from the first inning we learned 2 things. हमने 2 चीजें सीखी पहली इनिंग्स में. फर्स्ट, एक्सपीरियंस. हम में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया. एंड सेकंड, रिसोर्सेज. हो सकता है कुछ कंपनीज ने पैसा कमा लिया, कुछ लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, कुछ बिल्डिंग्स पहले बन गई. सो फर्स्ट इनिंग गेव अस 2 थिंग्स, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज. बट past success is not a guarantee for future success. And therefore, we should see what will matter now. The future requires 2 things. First is the new skills and the new technology. And second is innovation. So अब के बाद पहली इनिंग समाप्त, नई इनिंग शुरू. And what we need is the new technology and new skills and innovation. And this is why I say this is the era of the Gen Next. ये तो आपका era है. This is the time for you to move ahead. Let us also understand the role of the new age universities. The new role of, let us say, Hansraj College, or the new role of Dr. Ambedkar University, if I see Dr. Nitin Malik there, कि अब यूनिवर्सिटीज का क्या रोल होगा? क्या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के रोल में भी चेंज आएगा, या हमारे एलुमनाई जो बॉडी है उसमें भी चेंज आएगा? और मेरा एक ही कॉल होगा, कैन यू डू कंप्लीट मेंटरिंग टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको जॉब क्रिएटर बनाने की भी कोशिश करें, या उसको एक ऐसा रास्ता दे कि वो जॉब क्रिएटर बन सके? हाउ? ये होगा कैसे? लेट मी very quickly tell you, and this is why I am here today, from IMSME of India, as some of years back. And IMSME of India is actually a roadmap. It's a Google map to success, if you ask me. Now, why I say this? I have only one thing that I want to share with the world. What it took 30 years
मैं 30 साल में जहां पहुंचा, यकीन मानिए in 30 years I have worked only for 5 years. 25 years I've spent trying to find what to do, how to do, where to go, where to get support, where to find technology, where to get a bank loan. So 25 years of searching around and 5 years of implementation. So the best thing that today I have is and that I'm offering today is that maybe I can help you achieve in 5 years what took me 30. And let us give this to Hansraj too. Let us give this to our Gen Next at Hansraj. Let us create an entrepreneur cell at Hansraj. And let us create a startup cell with Hansraj alumni body and create wonderful job creators out of our college students. And what we can support you with is very important. I wrote a program called GAPS, Growth Accelerator Program for Small Businesses. And this is something that I authored based upon my lifetime of experience. And I believe that जैसे शरीर में कुछ acupressure points होते हैं जिसको हम प्रेस करते हैं या यूज करते हैं तो उससे हमारी बीमारी दूर हो जाती है, वैसे ही बिजनेस में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और अगर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हम ध्यान दें तो बिजनेस बहुत आसान हो जाता है करना, सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर ये रास्ता समझ ले हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आगे आने वाले एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो वो घबराएंगे नहीं जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए। पहली चीज जो सब पर लागू है वो ये है कि सिर्फ क्वालिटी की कदर है। अगर मैं मेक इन इंडिया में, अभी हम कहते हैं कि चाइना से मत लो, इंडिया से लो, लेकिन अगर मेरी क्वालिटी खराब है और चाइना की क्वालिटी बेहतर है तो कौन लेगा मेरा सामान? क्या विदेश में कोई मेरा सामान लेगा? तो पहली जो परख है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी काम की, वो है क्वालिटी। क्वालिटी मेक्स द डिफरेंस। इन फैक्ट इफ आई कैनॉट प्रोड्यूस राइट क्वालिटी, आई हैव नो राइट टू बी इन बिजनेस। तो चाहे एजुकेशन में जाओ, चाहे आप अपना टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलो, चाहे आप एक अच्छे ट्यूटर बन जाओ, चाहे आप एक हेयर कटिंग सलून बोलना चाहते हो, अगर मेरा नाई मेरे बाल गलत काटेगा तो सेकंड टाइम मैं उसके पास भी नहीं जाऊँ। अगर किसी ने मेरी शर्ट गलत सिली तो मैं दोबारा उस डिजाइनर के पास भी नहीं जाऊंगा। तो वक्त है अंडरस्टैंड करने का, क्वालिटी को समझने का। एंड दिस इज द प्राइम फोकस फॉर एवरीवन। Quality is the first fundamental of career. Second is productivity. You know, I can create a very good quality, but वो बहुत महंगी है, तब कौन लेगा? So people want best quality at the lowest cost, and therefore productivity and efficiency, चाहे वो institution में हो, service sector में हो, education में हो, manufacturing में हो, this is prime importance. Third important thing is innovation. कुछ नया, चाहे नया डिजाइन हो, चाहे नया कोई क्रिएशन हो, फोन भी हो तो हर 6 महीने में नया मॉडल, आज कार या मोटरसाइकिल भी हो तो कुछ नयापन, हर नयापन, नए तरह का रेस्टोरेंट, नई तरह की होम डिलीवरी, नए तरह का ई कॉमर्स, नए तरह की टीवी सीरियल, सब कुछ नया। So there has to be innovation and value addition in what we do. Fourth is knowledge management, brand building, creating a copyright, writing a patent, preserving and the theft of your knowledge. All these are very, very important and जो आज के टाइम पे जरूरी है। Fifth is scalability. मैं बहुत अच्छी चीज बनाता हूँ, किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं बनाता हूँ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? So therefore it is time to, we our entrepreneurs should know कि मुझे कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करना नहीं आता, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, उन्हें सामान बेचना नहीं आता। तो आज का मेरा स्टूडेंट, आज का मेरा यूथ जो एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में, जो डिजिटल मार्केटिंग को समझता है, कैन यू बिकम द मार्केटिंग चैनल ऑफ मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। किसी गांव में हैंडीक्राफ्ट में कुछ सामान बनता है और उसकी विदेश में बहुत डिमांड है, लेकिन गांव में बनाने वाला कनेक्टेड ही नहीं। तो क्या ऐसे में हमारा आज का स्टूडेंट एक मार्केटिंग चैनल बन सकता है?
एंड उसको सही ब्रांड की तरह पूरे वर्ल्ड के सामने उसकी वैल्यू प्रेजेंट कर सकता है और अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट कर सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके उसको बहुत जल्दी से किया जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। 6th इज फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आप मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या कोई व्यक्ति को एक ही काम आता है, उसका कोर एरिया है। अब वो फाइनेंस का आदमी नहीं है, उसने कॉमर्स नहीं किया, उसने MBA फाइनेंस नहीं किया, लेकिन जब बिजनेस में जाएंगे, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, तब आपको आना चाहिए कि बैंक से लोन कैसे मिलता है, आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, टैक्सेशन कैसे है, GST रिटर्न कैसे फाइल होंगी, GST कब लगेगा, कितना लगेगा। तो उस समय आपको फाइनेंशियली जागरूक होना, जिसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे आजकल एक कंप्यूटर लिटरेसी है कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो एज गुड एज इलिटरेट। उसी तरह जैसे ही आप अपने काम करने के लिए सोचते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस द स्ट्रॉन्ग लिंकेज एंड आई एम सो हैप्पी दैट पीपल लाइक प्रशांत जोशी they are veterans now in this area. 7th is to understand the importance of team, evaluating teams, bringing teams. ये बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी एरिया है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको किस तरह के कर्मचारी एम्प्लॉय करना चाहिए, इंटरव्यू कैसे लेना होता है। तो HR में बहुत सी स्किलिंग रिक्वायर्ड है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, और ये आज के यूथ का एरिना है। These are the gaps that exist in today's MSME world, and this is where the opportunity for many of you remains. 8th important thing in business is कि जो आप अकेले नहीं कर सकते, मिलके कर लो। Create a group, create a cluster, and this is a huge solution to a lot of things. जैसे exactly आज हम कर रहे हैं, और या हंसराज में कोई entrepreneur cell बनाएंगे तो ग्रुप में। 9th is that laws are changing so fast. हर रोज 8 मिनिमम गवर्नमेंट के सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आते हैं जो पुरानी चीजों को चेंज करते हैं, नए कानून लागू होते हैं और जिस पर ध्यान देना होता है। हालांकि सैकड़ों सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन हर रोज पूरे भारत में निकलते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 ऐसे होते हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करते हैं। तो कैसे वो बिजनेसेस को समझेगा, तो लगातार उसकी जागरूकता होना, उसको जागरूक होना इंपॉर्टेंट है। एंड 10th important thing is वो सभी के लिए है कि we have to keep learning, we have to remain connected with the knowledge hubs, with universities, with institutions, and keep networking. And this is exactly what we are doing today, networking amongst ourselves and bringing opportunities. So I see a new role for Hansraj alumni and the college. The first thing is, it is time to prepare students with basic fundamentals right. अगर किसी स्टूडेंट के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, that student can find a way in the darkness. So let us prepare students with their fundamentals, their concepts right, so that they can find their own way ahead. Second is, students should know how and where to find solutions. वो टाइम गया कि मुझे याद करके जाना पड़ता था और एग्जाम में लिखना पड़ता था कि what I remember by heart correctly is what I will score. I think it no more applies. अगर मुझे पता है कि ये solution मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे गूगल में क्या चीज सर्च करनी है, या मुझे किस बुक को, किस चीज को, ब्लॉग को रेफर करना है, if I can come back to you with a solution tomorrow, the next day, I think that is what. So today when I am taking interviews, I am not checking what someone knows. I am just checking the ability to find and search for solutions. अगर किसी में Google से ढूंढकर आंसर निकालने की क्षमता है, मुझे वो लीडर चाहिए। Third, give them time and space to learn new age skills. आप यकीन मानिए, आज मुझे बिजनेस में वो स्किल्स की जरूरत है
जो मैंने कभी स्कूल या कॉलेज में सीखी ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाला वक्त वो स्किल्स डिमांड कर रहा है जो अभी हम स्कूल और कॉलेज में सिखाते ही नहीं। सो देयरफॉर हम एटलीस्ट उनको वो टाइम और स्पेस दें ताकि वो नए स्किल्स सीख सकें, उनको वो नया ब्रीदिंग एरिया दें। एंड फोर्थ ऑफ कोर्स इज दैट द सोशल, मॉरल, कल्चरल बिहेवियर, हालांकि बड़ा आसान है कहना, बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर हम उनको ये क्लियर कॉन्सेप्ट से ह्यूमन ग्राउंड्स पे वर्ल्ड के बारे में, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर, इट इज रिक्वायर्ड। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमें बचपन से सबसे गलत चीज सिखाई गई। हमें हमेशा सिखाया गया दैट फेलियर इज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, और यही सबसे गलत चीज हमने आज तक सीखी है। एक्चुअली फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर और सक्सेस तो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, पहले फेलियर आता है और फिर सक्सेस आता है। सो फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, quitting is the opposite of success. So we have to bring our students that they don't have to quit. They have to understand there may be struggle initially, there may be some challenges initially, but then it means they are going in the right direction. और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को करने के लिए एक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम करना है कि यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या हमारा एलुमनाई एसोसिएशन है, ये सेंटर में हब की तरह काम करे कि किसी भी हमारे स्टूडेंट को या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को क्या समाधान चाहिए उसको सिर्फ कनेक्ट कर दें, मुझसे कनेक्ट कर दें कि किसी का प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना है, लोन कैसे मिलेगा, किसी और से कनेक्ट कर दिया किसी और समाधान के लिए। तो अगर हम केवल इस रोल को समझ लें कि हम एक हब एंड स्पोक, हम एक हब बन जाएं जो सभी राइट सॉल्यूशंस के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे एक रिसेप्शनिस्ट आपको गाइड कर सकती है किसी हॉस्पिटल में कि आप किस डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, तो अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज केवल ये काम कर ले कि आने वाले सवाल को सही सॉल्यूशन सेंटर के साथ कनेक्ट कर दे, मुझे लगता है कि ये बेस्ट एंटरप्रेन्योरियल सेल होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए। अगर कोई यंगस्टर गलती से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर जहां पर ये टेलीकास्ट हो रहा है, कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं। पहली चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू बूटस्ट्रैप। वो जमाना गया कि लॉस मेकिंग कंपनीज में कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स, कुछ वेंचर फंड्स, कुछ इक्विटी फंड्स इक्विटी डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है, सिर्फ फ्यूचर वैल्यूएशन के लिए वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, लॉस मेकिंग स्टार्टअप, उनको सिर्फ इसलिए पैसा मिलता रहा है क्योंकि वो आगे चल के शायद कोई वैल्यूएशन होगी। ये वक्त बदल गया। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो टर्न अराउंड करने वाली कंपनीज अगर आप नहीं हैं तो फर्दर कोई वेंचर फंड या इक्विटी फंड आपको मिलेगा। तो आप अगर फंड ऑफ फंड्स को देख रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फंड ऑफ फंड्स लेके आ रही है, ऑलरेडी हमारे पास एक स्टार्टअप इंडिया फंड है जिसमें 25 करोड़ तक फंडिंग होती है अगर अच्छा स्टार्टअप आइडिया हो। लेकिन अभी वक्त है कि बहुत जल्दी अपने बिजनेसेस को प्रॉफिट में लेके आना, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में लेके आना। सेकेंड, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। अगर रेस्टोरेंट भी चलाते हो और आपका जोमैटो या स्विगी के साथ टाई अप नहीं है तो कैसे डोर डिलीवरी करोगे? या आपका एक ऐप भी अगर है, आप एक छोटा सा भी रेस्टोरेंट बना लो, एक बिरयानी कॉर्नर बना लो और उसको एक ऐप के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर दो, तो मे बी यू कैन रिसीव योर ऑर्डर्स ऑन योर ऐप एंड यू कैन डिलीवर थ्रू एनी डिलीवरी कंपनी। सो टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो चीजें हैं जिसमें हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे एरा की ये चीजें नहीं है, लेकिन आज के एरा को ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस एंटरप्रेन्योर्स, बट एंटरप्रेन्योर्स हु यूज टेक्नोलॉजी will replace entrepreneurs who don't. And this is what is important. So if entrepreneurs can use technology, they will survive. If youngsters can bring technology, they will replace me.
Technology is the game changer, and today's Gen Next has this advantage. Third, and I have said this before, we need new age skills, skills for the future, skills that we are not taught in schools and colleges. Those are the skills that are required in today's world of entrepreneurship. Fourth, very important, choose your company. It matters. कहते हैं कि पानी की एक बूंद अगर नाले में गिर जाए तो खो जाती है, किसी फूल पर गिर जाए तो चमकने लगती है, किसी सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, वो कहां पर है ये मैटर करती है। तो संगति मैटर करती है, योर कंपनी मैटर करती है। आप कौन सा टीवी चैनल देखते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, किसको फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो करते हैं, वो आपको क्या थॉट्स देते हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं या मिडिवल एज के हैं, all this will matter. Choose your company. This is one decision which is in your hands. Fifth is go local, also go global. It is so easy. आप दिल्ली हाट से प्रोक्योर करके कुछ हैंडीक्राफ्ट, हो सकता है ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी को समझ लें तो बहुत आसान है, अदरवाइज लोकली बेचना भी मुश्किल है। सो इसीलिए इंडिया में जब भी हम कोई काम करें, हम पूरे ग्लोबली, अभी मैं पिछले दिनों एक बहुत अच्छी कार्ड इनविटेशन कार्ड कंपनी से मिलने के लिए गया, और वो शादियों वगैरह के इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और बहुत बड़ा काम है, 100 करोड़ से ज्यादा का काम है उनका। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज पूरे वर्ल्ड में इतने एनआरआईज हैं, इतने इंडियंस रहते हैं, लेकिन अब वो वहीं अमेरिका में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, लेकिन आज भी जब उनके यहाँ कभी कोई बर्थडे होता है या कोई शादी होती है तो वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से करना चाहते हैं। तो उस समय कार्ड डिजाइनिंग और या कोई पूजा है, दिवाली है तो दिवाली की थाली, पूजा की थाली, तो जो बेसिक्स हैं हमारे वो पूरे वर्ल्ड तक, तो ये छोटी सी कंपनी इतना बेहतरीन काम कर रही है। तो मैंने वही देखा कि अगर टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स को समझ लें तो पूरे वर्ल्ड में आपकी मार्केट है। सिक्स्थ इज सस्टेनेबिलिटी। आज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को समझना, say no to plastics and other things are so important. Seventh is the speed of change. अभी speed is very important. अब सवाल ये नहीं है कि आप strong कितने हैं। हम लोग को डार्विन्स लॉ पढ़ाते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी इट इज सर्वाइवल ऑफ द निम्बल। निम्बल मीन्स कि स्पीड ऑफ चेंज, आप कितनी जल्दी अपने आप को बदल सकते हैं। इट इज टाइम सर्वाइवल ऑफ द निम्बल, कितनी जल्दी आप अडेप्ट कर पाएंगे अपने भविष्य के लिए। एंड एट्थ एंड लास्ट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और जो भी आप बिजनेस के लिए पैसा लगाएं, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अदरवाइज हु एल्स वुड। आपको खुद अपने आप को अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है। याद रखिए, पैसा देने के लिए आज बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं। भारत सरकार ने बहुत स्कीम्स बनाई हैं आत्मनिर्भर भारत में। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, अगर कोई रोड पर सब्जी बेचना चाहता है या रोड पर कोई काम करना चाहता है, एक खोमचा भी खड़ा करना चाहता है, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत में स्कीम्स बनाई हैं कि 10,000 तक का लोन दीजिए किसी भी आदमी को जो सड़क के किनारे खड़ा होकर भी एक स्ट्रीट वेंडर बनना चाहता है। तो स्ट्रीट वेंडर से लेके 2 करोड़ रुपए तक का लोन किसी एंटरप्रेन्योर को बिना माता पिता की गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के मिलता है। आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए तक के लोन आपको बिना आपके पिताजी को, आपकी माताजी को भी गारंटी फॉर्म साइन नहीं करना है, घर भी गिरवी नहीं करना है, नो कोलेटरल, नो सिक्योरिटी। तो भारत में आज ये सुविधाएं उपलब्ध है। मुझे लगता है कि सबसे आसान काम है इंडिया में लोन लेना। ज्यादा मुश्किल है ये सोचना कि किस चीज के लिए लोन लें। तो अगर अपना रास्ता आप बना पाए तो आज बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है IMSME ऑफ इंडिया, उसका तो काम ही यही है
कि एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना और बताना कि कैसे वो बहुत जल्दी उनके समाधान, उनकी मुश्किलों का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, सेकंड इनिंग्स हैज नाउ बिगन एंड इट इज टाइम to learn new techniques. Everybody is learning new techniques. It is also the time when there are equal opportunities for all. वो जमाना गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वैद्य का बेटा वैद्य बनेगा। टुडे आज कोई भी MBBS कर लेगा वो डॉक्टर बनेगा। पिताजी क्या करते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई भी अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो क्रिकेट में आएगा। सो नेपोटिज्म और ट्रेडिशनल चीजों का जमाना नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। आपका स्किल और टैलेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि सक्सेस इज ओनली 20% टैलेंट एंड इंटेलिजेंस। अगर मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा कोई वेस्ट होती हुई चीज देखी है वो है टैलेंट और इंटेलिजेंस। I have seen people hugely talented, extremely intelligent, but failures. So talent and intelligence have only 20% role in success. 80% comes from application. You have to apply that talent. You have to apply that intelligence in the right direction. That is when the success comes. Also remember, the time is of most important. It is the most important resource, and that is time. Na paisa, na kuch aur, but time. How you using your time? Friends, India has a very unique spirit of entrepreneurship. Our people have brought out their own brands. We use our own logos. We find our own innovation. We have our own innovative ways of protecting many things. We have our own logistics. Our Gen Next is ready and very, very different. We have our own ways to find solutions. We have our own simplicity to deal with. We use our own banners in our own ways, and that is what makes us so special and so unique. We have our own goals and we have our own dreams. Because ultimately, it is all about your passion and it is all about what you see, challenges or opportunities. आप किस पोजीशन पे हैं, आपने अपने आप को कैसा माइंडसेट रखा है और आपको सामने क्या दिख रहा है, चैलेंज या अपॉर्चुनिटी। वी हैव टू ट्रस्ट द मैजिक ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। रीसेट, refocus, restart. When I was in college, I was told this. There's a Murphy's Law. If it can go wrong, it will. But today, I have a new law. If anything can go wrong, fix it. To hell with Murphy. With these words, I thank you all. And for those who want to know more, you can go to imsmeofindia.com and it has many connections and a lot of information on entrepreneurship, on how to start your businesses, what support is available from this institution. And with these words, I thank you. Thank you all for a very, very patient hearing. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you so much, Rajiv ji. Can we all applause for Rajiv ji? Please unmute. Yes. And Chetna, I will add only 3 words. When Yes. the Olympics started, the Bishop Henry said, Citius, Altius, and Fortius. We have to be faster, we have to be higher, and we have to be stronger. Thank you very much. Now I'll request our Nitin Malik to conclude. Sir, before Sir, that, there- I see there are some questions.
if Oh, we yes. have time, Oh, yes. if we have Yes. time, Please, so oh yes, why not? So many questions are there. We can quickly take up them. Okay, so sir. चेतना जी, हाँ, एक एक करके क्वेश्चन आप Yeah. बोल दीजिए, so that हाँ जी. राजीव sir Nitin, can answer there on are that. only 5 questions, no? So Yeah, we can 5 do them questions. quickly. Yes. Yeah. So the first question is from Neeraj Sheth. He is asking, best quality and low cost, how can they be together? Oh yes. You look at the mobile phone that you're carrying. I'm sure your mobile phone is of best quality, and the cost, of course, is there, which you can compare with what you bought the same phone last year. It's all about evolution and technology. You know, best quality में जो best word है, उसको define करना बड़ा important है कि आपके customer की expectation क्या है. अब आप कोई भी टीवी लें, आप सोनी का भी टीवी लेते हैं या माइक्रोटेक का टीवी लेते हैं, दोनों के प्राइस में फर्क होगा. आप एलजी या सैमसंग का टीवी लेंगे, प्राइस में फर्क होगा. लेकिन ये सभी टीवी चलते हैं. ये सभी टीवी 5 से 7 साल की लाइफ इनकी रहेगी. कोई पंखा भी आप बाजार से ले तो 7 साल की वारंटी होगा. तो आप कैसे किसी पंखे को कहेंगे कि ये बेस्ट है या नहीं है? पॉइंट ये है, क्वालिटी वो है जो एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करती हो या उसके बियॉन्ड डिलीवर करती हो, और कॉस्ट भी उसी पैरामीटर पे नापी जाती है. घड़ी वही है, रोलेक्स की भी और टाइटन की भी, दोनों ठीक चलती हैं, दोनों समय ठीक बताती है. पॉइंट ये है कि आपकी परसीव वैल्यू क्या होती है. तो कस्टमर के लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, बट दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है. द बेस्ट प्राइस विद द बेस्ट क्वालिटी. ऑफ कोर्स एक शर्ट आप लेने जाते हैं, 1000 रुपए की भी शर्ट है, 10,000 रुपए की भी शर्ट है. घड़ी लेने जाते हैं, 1000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की घड़ी है. बट पॉइंट ये है कि आप अगर 1000 रुपए की घड़ी भी लेते हैं तो वो भी 10 साल चलती है और वो 10 साल समय ठीक बताती है. सो lot of this is marketing, but fundamentally your best price has to meet with the lowest pricing, and that is what is important. Look at the two-wheeler industry. आज एक मोबाइल फोन की कीमत पर आप 2 मोटरसाइकिल खरीद सकते हो. एक आप आईफोन खरीदने जाते हैं जो i10X या जो आज कभी नए फोन हैं, एक फोन की कीमत पे आप 2 मोटरसाइकिल ले लेते हो. अब आप 2 मोटरसाइकिल की कीमत लगाइए, मोटरसाइकिल की वारंटीज देखिए, शॉकर्स कितने टाइम चलेंगे, टायर कितने टाइम चलेंगे, खराब हो गई तो बदली जाएंगे, उसकी वारंटीज हैं. कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं आप. मुझे नहीं लगता कि ये मोबाइल फोन 6 महीने या 1 साल से ज्यादा चलेगा. तो इससे कई गुना ज्यादा एक टू व्हीलर इंडस्ट्री आज आपको डिलीवर करती है. ये सभी चीजें, क्वालिटी, कॉस्ट और परसीव्ड वैल्यू, ये एक पिरामिड है या एक ट्रायंगल है जो रेगुलरली इवॉल्व करता है. तो आप जिस ट्रेड में हैं, आपको डिफाइन करना है कि आपकी क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड होगा कस्टमर के हिसाब से, और उसके हिसाब से क्या प्राइसिंग होगी. Okay, sir. The next question is from Nitesh Kumar Pandey. एक उद्यमी दृष्टिकोण कोविड-19 संकट को समाप्त करने में कैसे मदद कर सकता है? एक बार दोबारा बताएंगे मैम. एक उद्यमी दृष्टिकोण कोविड-19 संकट को समाप्त करने में कैसे मदद कर सकता है? बहुत ही जरूरी है. आपको पॉजिटिव रहना है और आपको देखना है कि कोरोना इज नाउ न्यू वे ऑफ लाइफ. जैसे कभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए गांवों में बाढ़ आती है. अब वो बाढ़ मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में. हम टीवी पे न्यूज देखते हैं, आसाम में बाढ़ है, बिहार में बाढ़ है, और बाढ़ की न्यूज पढ़ लेते हैं और लगता है कि अच्छा दैट्स इट. क्योंकि दिल्ली में कभी बाढ़ नहीं आई या गुड़गांव में बाढ़ नहीं आई या नोएडा में नहीं आई, तो हमें मालूम भी नहीं है वहां के पेन्स क्या है. ये तो पहली बार है कि कोरोना ने वो इम्पैक्ट किया कि आप और मैं भी लॉकडाउन में घर में बैठ गए. सो पॉइंट ये है कि आज दृष्टिकोण बड़ा इंपॉर्टेंट है. We have to accept challenges as they are and then find a way ahead. तो अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए और एक्सेप्ट करिए लाइफ में गलत चीजें भी होती हैं,
मुश्किलें भी आती हैं, भूकंप भी आएंगे, बाढ़ भी कई इलाकों में आती है, पर वहां के लोग भी अगले साल फिर से अपनी फसल लगाते हैं, बाढ़ आने के बाद दोबारा से अपना घर बनाते हैं और फिर नेक्स्ट बाढ़ का इंतजार करते हैं। तो लाइफ में लगातार करते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना, तो दृष्टिकोण तो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। Okay. So next question is from Mr. Dinesh Chopra. How can we change the mindset of Indian entrepreneurs to take risk, think bigger and global? You don't have to change the mindset, sir. Indian entrepreneur, you think entrepreneurship is easy in India? And with so many rules and unease of doing business जो हमारे आसपास है, हजारों रिटर्न, हजारों चीजें, हजारों पाबंदियां जो बिजनेस पे हैं, तो it is not very easy to do business in India. In fact, इंडिया का बिजनेस का रैंक तो 142 हुआ करता था 2014 तक, जो अब बढ़कर 62 तक आया है। तो अभी हमने पहले से इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा 62 नंबर है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर का ऑलरेडी माइंडसेट है रिस्क लेने का। इंडिया में बिजनेस करने को रिस्क लेना ही माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है जो मैंने फेलियर वाली बात कही थी कि हम ना फेलियर को दोबारा मौका नहीं देते आगे बढ़ने। हमारे इंडिया में फेलियर को सिन माना जाता है। सोसाइटी ये मान लेती है कि जैसे ही किसी का बिजनेस नीचे गया तो उसने जरूर कोई बैंक से घपला किया होगा या चोरी होगी। दोस्तों याद रखो कि हर बिजनेस अपने लिए पॉजिटिविटी लेकर ही चलता है आगे, लेकिन आगे चलने के लिए जब हम लेके चलते हैं तो उसी का नाम रिस्क है। अब आप इमेजिन करिए किसी ने बैंक से लोन लेके गुड़गांव में 6 महीने पहले पब खोला और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला और पब खोला और दिसंबर में लॉन्च किया, ग्रेट पार्टी, ग्रेट बिगिनिंग, और मार्च में लॉकडाउन हो गया। सबसे पहले मॉल्स को बंद किया गया और सबसे एंड में वो मॉल्स खुलेंगे। अभी पब में अल्कोहल सर्व करना अलाउड नहीं है, ब्यूरी को खुलना अलाउड नहीं है, अभी वो डिस्कोथीक और वो भीड़ वाले पब का टाइम नहीं है। तो जिसने 6 महीने पहले लोन लेके अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है आज उसका बिजनेस किसी लॉ ने ही बंद कर दिया कि अब हम पब को अलाउ नहीं करेंगे चलना, तो आज वो अपना लोन कैसे वापस करेगा। तो इंडिया में या दुनिया में कहीं भी जब भी आप कोई कदम उठाते हैं वो रिस्क होता है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर इज वेल अवेयर और इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हमारे देश में 6.5 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे देश में 45% प्रोडक्शन छोटे सेक्टर में ही होती है और 50% के लगभग एक्सपोर्ट छोटे बिजनेसेस करते हैं। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज अ ग्रेट माइंडसेट एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर तो एक कॉकरोच की तरह है कि कोरोना हो जाए या न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए, हम फिर से निकल कर आएंगे और अपना रास्ता बनाएंगे। It is with that positivity that I speak. Greatly said. Chetan, last question. Yeah, Okay. finished. I am taking the last question. Yeah. This is from some number I31OU. What support does IMSME India provide to entrepreneur? All right. First thing, show you the way. Show you the best way in your business idea. Second is, if you feel it's difficult, which bank to go, we can advise you that. आपकी कहीं आपने बिजनेस किया, आपकी कहीं पेमेंट फंस गई, we'll tell you how to recover the payment. आपको किसी लॉ के बारे में, जीएसटी, इनकम टैक्स के बारे में नहीं मालूम है, we'll give you a panelist, we'll give you a consultant and he'll do it for you. आपको मैन्युफैक्चरिंग में गए, 1 करोड़ रुपए तक की ग्रांट और सब्सिडी, 1 करोड़ रुपए की ग्रांट और सब्सिडी जो आपको वापस भी नहीं करनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है। हम आपको वहां तक लेके जाएंगे और वो दिलाएंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, आईपीआर में आपको हेल्प करते हैं। आप समझ लीजिए IMSME ऑफ इंडिया एक वन स्टॉप एडवाइजरी सेंटर है कि आप अपने से रिलेटेड इशू बताइए एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। Great. Okay. So there is one more question. If we, it's okay to take that question. I think
चलो It's, okay, go ahead, man. but it will have a very long answer. Or Can you चेतना please, आप क्वेश्चन Can- पढ़िए, मैं आंसर सोचता हूँ. yeah, Tell. can you please inspire us from your own major personal experiences, the opportunities and challenges in your business journey? This is from Arnav Mishra. तो इसके लिए अगर हंसराज एलुमनाई एसोसिएशन मुझे दोबारा कभी बुलाने की गलती करेगा, I'll- तो फिर नेक्स्ट टॉपिक don't ever say that. Don't ever. You you're too modest. Yeah. Can we? Yeah. I think that is it because अपने बारे में बताना, अपनी लाइफ के, मैं कोई बहुत, आप बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप स्टीव जॉब्स की बुक पढ़िए, आप बिल गेट्स के बारे में पढ़िए, बहुत सारे रतन टाटा के कोट्स को पढ़िए, बहुत इंस्पायरिंग लोग हमारे देश में. आई एम अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर. आई हैव सीन माय ओन challenges, ups and downs, crests and troughs. मुझसे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज बहुत लोगों की है, पर मैं एक चीज जानता हूँ कि जितने भी सुपर सक्सेस हैं वो सब निकले उसी रास्ते से. एवरीबडी फेल्ड फर्स्ट एंड देन केम आउट. फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू शाहरुख खान टू स्टीव जॉब्स, everyone, we have all failed first and then we have come out. So बहुत सारी इंस्पायरिंग बुक्स हैं, बहुत कुछ है, आप वो पढ़िए, बट सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है आप अपने काम को ठीक करिए. दैट इज इट. सिर्फ बातों से दुनिया नहीं चलती है. सिर्फ कवि सम्मेलन करके कवि सम्मेलन रेन करके अपने आप को पेट्रियोटिक समझ लेना वो एक इशू हो सकता है, लेकिन रियल पेट्रियोटिज्म है अपने काम को 100% करना, और बस वो करिए. Great. I request Rajiv to give the details of ESMA of India, please. So it's good for Alright. everyone. I'll just write the website address and So it's give the- it has an app also जिसको वो डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं, और आपके तो बहुत क्लाइंट्स होंगे शान जी, Yes, और 1-1 करोड़ रुपए तक की ग्रांट्स और सब्सिडीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को पता भी नहीं होंगी, जो गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलती हैं. So they can avail of these opportunities and these these things. Thank you very much. Nitin, Yes, I am here. Yeah. can you? I am here. I am here. Can you shall I? go? Please. Thank you, Yes, sure, thank you, sure, sure. राजीव जी. So, Thank you, Rajiv. नितिन जी, Thank नितिन you. जी, एक Thank second. you. राजीव जी, आपको अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से डॉक्टर वाईपी ओबराय की आप स्टूडेंट रहे हुए हैं, जी है ना? तो डॉक्टर वाईपी, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर वाईपी ओबराय ने फेसबुक पे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और सबने Yes. बेस्ट विशेस भेजी हैं आपके लिए. Yes. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. so Go ahead, Nitin. So yeah, so for a formal vote of thanks to my senior and my I'll say Rajiv sir, a young dynamic. नितिन जी just one second. There is one Mansi I see, और वो बहुत नाराज हो रही हैं. वो कह रही हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. हाँ, मेरे को तो मानसी का शायद ऐसा कमेंट आया हुआ है. Okay, Yes. so तो I'll ask मानसी का देखो कौन सा नहीं तो question था? प्लीज क्या कह रही है मानसी जी, प्लीज. मानसी जी, सर उनको अनम्यूट कर दें क्या? नहीं, हाँ, क्वेश्चन कर बताओ क्वेश्चन तो का दो क्वेश्चन क्या पार्ट है? है सर. क्वेश्चन है आइडिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट, फ्रॉम वेयर टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप सर. ओके, एक ही लाइन में कहता हूँ कि मुझे सब कुछ करना आ सकता है. मैं आपको बैंक से लोन दिला सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ बिजनेस को कैसे बढ़ाओ, एक्सपोर्ट कैसे करो, कहाँ करो, सब कर सकता हूँ. एक मेहनत. चीज मैं कर नहीं सकता, और वो मैं करूंगा भी नहीं, कि क्या काम किया जाए. अपनी Idea चीज वो खुद चुनिए. कोई टैक्सी चलाता है, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलता है, कोई डिजाइन सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग, हजारों चीजें हैं. कोई आप देखते होंगे बच्चे टैटू बनाते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और चीज है. आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो आप तय करिए. हम आपका बिजनेस आइडिया इवैल्यूएट करने में आपकी हेल्प करेंगे कि उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, या उसकी स्केलेबिलिटी के चांसेस क्या है, और उसको मॉडिफाई या रिफाइन कर सकते हैं. लेकिन बिजनेस आइडिया जो सीड है, वो सोच है,
वो आपको ढूंढे। Sir, many participants want to get a copy of your presentation. So will it be possible? कॉपीराइट है, पेटेंट है। आप मुझे दोबारा बुलाने की गलती करिए और मुझे झेड़िएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। Yeah, sure. Okay, sir. Before I start with the formal vote of thanks, हमारे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं रामानंद जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है जो मैं अभी स्क्रीन में देख रहा हूँ कि राजीव जी ये बताइए कि जो गांव है, क्योंकि उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोकलाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू और इम्पोर्टेंस है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सेटअप एंड द कल्चरल आउटलुक एंड एस्पेक्ट। तो विलेज के अंदर में उन्होंने पूछा है कि ये जो सारी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल और ईडी सेल जितना है ये जनरली हम सिटीज में देखते हैं, बट डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रूरल सेक्टर आल्सो? इफ यू कैन जस्ट बी ब्रीफ सो दैट। ओके, मैं इसका बड़ा सिंपल और सरल आंसर देता हूँ कि यस, सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज रूरल सेक्टर में है। और मैं आपको एक इतना सा उदाहरण देता हूँ कि आज से करीब 18 साल पहले की बात है, एक छोटा सा एक यंग लड़का गांव का वो मुझसे मिला। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको लोन देते हैं, उस समय हम 50,000 तक का लोन देते थे, पर हमारी कंडीशन थी लोन के साथ एक गुरु देते हैं, एक मेंटर देते हैं। तो लोन भी दिया और मेंटर भी दिया, और उस मेंटर को ये होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंश्योर करे कि उसका जो एंटरप्रेन्योर है वो फेल ना हो जाए और उसको रास्ता दिखाते हुए। तो इस छोटे से इस यंग लड़के ने आज से 18 साल पहले इसने 35,000 का लोन लिया और आई वाज हिज मेंटर। एंड आज उसके पास करीब 4,500 लोग काम करते हैं। ओह माय गॉड, ग्रेट राजीव जी, ग्रेट। तो एक गांव में एक आटा चक्की लगाने के लिए इसने लोन लिया 35,000 का, और उस आटा चक्की में मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ उसको गाइड किया कि अब ऑर्गेनिक में चले जाओ, आटा का ब्रांड कर दो, आटे की अब ये पैकेजिंग कर दो, और ये ऑर्गेनिक आटा हम इन चैनल्स के थ्रू आप मार्केट कर सकते हो। कुछ कनेक्ट कर दिया, कुछ और उनको बिजनेसेस के आइडिया दे दिए। आज 4,500 लोग उसके यहाँ काम करते हैं। तो पॉइंट ये कहने का है कि एक आटा चक्की, एक मसाला बनाने के लिए, या गाँवों में एक और मैं चीज बताऊं, मैं 6 वर्ष NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, भारत सरकार का ये संस्थान है, आई वॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस बॉडी फॉर 6 years। एंड तो यहाँ हमारे इंक्यूबेशन सेंटर चलते हैं। तो जैसे ओखला में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, तो ब्रेड कैसे बनाते हैं, केक कैसे बनाते हैं, प्लास्टिक के ग्लास कैसे बनते हैं, सोलर लाइट कैसे बनती है, तो वहां पर करीब 50 तरह के बिजनेस करने सिखाए जाते हैं। आप वहां जाइए, आप देखिए आपकी रुचि किसमें, आप ब्रेड बनाना सीख लीजिए, केक बनाना सीख लीजिए, कौन नहीं लेना चाहेगा। रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, गांव में दूध की डेयरी आसान है लेना, ठीक दूध की डेयरी लेके आइए। कंट्री डिलाइट देखिए कहाँ से कहाँ स्टार्टअप पहुंच गया। तो पॉइंट ये है, रूरल एरिया अर्बन एरिया कुछ नहीं, रूरल एरिया मीन्स मोर अपॉर्चुनिटी, यू आर क्लोजर टू द रॉ मटेरियल बेस, and your raw material sourcing will be very, very localized and very, very cheap. You just have to add some value and export it to the world. Simple. It can be done. Cost effect also. Yeah, Nitin. Dear Nitin ji. Yes, sir. मैं तो जितना राजीव जी को सुनता हूँ ना, उतना ही वो लगता ही नहीं है कि और सुनते रहें, बिकॉज इतने इनोवेटिव आइडियाज, इतने अच्छे प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस हैं, जो स्पेशली when we are going through a difficult situation and time, and always a blessing for the youngster. But anyhow, because every program has to end, and as rightly said by Rajiv Chawla ji, कि मेरे को दोबारा गलती नहीं साहब, हमारा सौभाग्य होगा हंसराज कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन के सभी की तरफ से, ये हमारा पूर्ण सौभाग्य होगा अगर आप हमें फिर से अपना मूल्यवान समय दे पाएं, जिससे कि ना सिर्फ हम लोग आपके इस एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज से खाली हम ही लोग बेनिफिट ना हो पाए, बल्कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो खास तौर से अभी हंसराज कॉलेज में
पढ़ रहे छात्र और छात्राएं हैं, और हंसराज क्यों, मैं तो कहूँगा जितने भी छात्र छात्राएं जो अपने करियर के प्रति अपने सफर में जो अभी चल रहे हैं, वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप पुनः समय दे पाए। मैं ये कार्य तो हमारी आदरणीय मैडम जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे क्षमा चाहते हुए उनकी तरफ से ही मैं चाहूंगा कि वो अपनी हमें फिर से आज्ञा दे कि हम राजीव चावला सर को दोबारा से बुला सकें हंसराज कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे। और बिफोर आई फॉर्मली मेक वोट ऑफ थैंक्स, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट राजीव सर, मैं सुन रहा था आपको, और याद होगा मैंने आपके साथ में, मैंने आपको विज्ञान भवन में भी सुना, मैंने आपको टीवी में भी सुना, आपका IMSM ऑफ इंडिया के अनेक कार्यक्रम आप लोग करते रहते हैं, आपका अपना इंडस्ट्री सेल इंटरलिंक है, आपका अपना YouTube के अंदर में मैंने बहुत बार आपको सुना। तो पता नहीं कहाँ से आप एक एनर्जी और इतने थॉट्स प्रोसेस लाते हैं। जो अभी एक क्वेश्चन था तो आई वाज जस्ट कोरिलेटिंग, जिसने एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपने को कैसे लिंक करते हैं कि आप बॉटनी ऑनर्स करने के बाद में आप PG करने के बाद में आप अपने को एक बिजनेसमैन के रूप में या एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, रादर आई विल से दैट एज एन मॉडल फॉर द IMSM ऑफ इंडिया के रूप में आप कैसे लगते हैं। तो मुझे वही लगता है कि हर बार जब भी मैं सुनता हूँ आपको, जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ, तो ऐसी नई ज्ञानवर्धक चीजें मिलती हैं कि जिसको कि वाकई में ही हमको, आज मैडम भी इस बात में बिल्कुल, प्रिंसिपल मैडम, और यहाँ पे बहुत से सीनियर फैकल्टी हैं, बहुत से यहाँ पे हमारे अपने ही दोस्त हैं जो अपनी फील्ड्स के अंदर, फील्ड ऑफ उसमें स्पेशलाइजेशन में पूर्ण रूप से बहुत सजग हैं। तो हमें वाकई बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिलती हैं। आपका जो राजीव चावला जी ने आज जो 2-4 चीजें महत्वपूर्ण जो हमें बताई, उसमें मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगा। बेरोजगार से रोजगार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरा, उन्होंने जो बताया कि हमारी ये सेकेंड इनिंग है, आई ऑल्सो टेक इट एज अ सेकेंड इनिंग, क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम। पता ही नहीं था किसी को, नोबडी न्यू अबाउट कोविड-19। दिसंबर में हम बात जरूर कर रहे थे कि वुहान में कुछ हुआ है, चाइना में कोविड-19 आया है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये हमारे को बिल्कुल क्रीज से ही बाहर खड़ा कर देगा कि अब तो हमको जो है वो भी क्रिकेट मैच भी खेलना है या जिंदगी का जो भी मैच खेलना है वो सोशल डिस्टेंसिंग से खेलना है। सोशल डिस्टेंसिंग में मेरा थोड़ा सा अपना, बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आई हैव अ बिट रिजर्वेशन। आई ऑलवेज से इट एज अ फिजिकल डिस्टेंसिंग rather than social distancing. I don't believe in social distancing. I believe Very in physical correct. distancing. Very Yes. correct. So I Very, will always very say happy. physical distancing. But the idea is कि कितने अच्छे से राजीव जी ने बताया कि अगर हम सेकेंड इनिंग में भी आए, इतनी डिसरप्शन आई लाइफस्टाइल के अंदर में, हमारी जिंदगी में इतना उथाल और उतना आया, लेकिन उसके बावजूद भी नाउ वी आर कोपिंग अप, अडैप्टिंग टुवर्ड्स विद द कोरोना, लिविंग विद द कोरोना, एंड दैट इज हाउ even when there is a loss of opportunities, new avenues have come. लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज में कितना फॉल बैक हुआ, कितने अच्छे से उन्होंने समझाया कि बिजनेसेस कितने, कहाँ पे कितनी कंपनीज में ले ऑफ हुआ। तो उन्होंने एक रेड जोन दिखाया था और एक ग्रीन जोन दिखाया था। आजकल तो ये कोविड-19 ना बड़े अच्छी टर्मिनोलॉजी हम लोगों को सबको सिखा दी है, क्वारंटाइन, ग्रीन जोन, रेड जोन, कंटेनमेंट। तो उन्होंने एक रेड जोन दिखाया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कहाँ फर्क पड़ा है, किस किस इंडस्ट्री में फर्क पड़ा है, और वहीं पे उन्होंने अपनी पीपीटी में एक ग्रीन जोन दिखाया था कि कौन सी जो इंडस्ट्रीज और कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर में कोविड-19 में आने के बावजूद भी वहां पे कितना पेस से काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा राजीव जी, और मेरे साथ साथ यहाँ बैठे हुए सारी फैकल्टी भी डिफर करेगी। एजुकेशन आपने अभी रेड जोन में डाला था उसको, तो एजुकेशन कोविड-19 आने के बाद में रेड जोन में जरूर आया था। इट स्टार्टेड ऑन अ रेड जोन मार्क, बट इमीडिएटली द एंटायर फैकल्टी ऑफ दिस कंट्री adapted itself to the online teaching platform. They immediately went on, and in spite that they were either trained or not trained, or they were having a software or they were having the IT tool. But yes, I go with your point. Every change, every adaptation is in totality with the Mr. use Malik, of the Mr. IT Malik, technology. I didn't say it was in red zone, which means the jobs in that sector Agreed. right now are less. Yes. The jobs in that sector are right now less. In fact, Not many,
And let me tell you, I'm not talking about the government colleges and etc. In private sector, 50% teachers will lose their jobs in Agreed. this year. So that is why it was in the red zone. No. I'm not saying, sir. I'm just adding to your point. It is a transformation. So what I go along with your idea is, whatsoever is changing as the adaptation. जो आपने मर्फी लॉ बताया ना लास्ट में, कितने अच्छे से आपने बताया कि मर्फी लॉ में ये है कि if they say there has to be anything which will go wrong, no, I will adapt and I will change to it. That is the example of even all sectors. And secondly, जो एक उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बोली, जो हम लोग colleges में, schools में, even universities में, which we keep on saying and which we keep on discussing, that now education is not only restricted to understanding of knowledge. ये खाली knowledge की ज्ञानता को लेने के लिए education नहीं है. Education का स्वरूप ही बदल गया है. जब हम globally बात करते हैं तो it is a creation and innovation. तो जो creation और innovation की बात राजीव जी ने बोली बहुत ही important है. उन्होंने बोला कि हमको पहले learn करना है और फिर unlearn करना है. यहाँ unlearn करने के साथ में, जैसे राजीव जी ने अपना example दिया, he is a man from botany honors, and see what he is at present is one of the top, I will say, the top persons in the entrepreneurship awareness, entrepreneurship building, helping the companies, helping the small scale industry. So learn करने के बाद unlearn किया और उसके बाद relearn भी करना है हमको relearn करना है on the basis of the socio-cultural aspect. Third concept which I really appreciate and liked was from job seeker to job creator. This is where the role of madam, हमारा role, आपका role, सारे faculty का role आता है कि जो राजीव जी ने आज बोला है, मैं बहुत इसको अपने साथ गांठ बांध कर ले जा रहा हूँ. I am taking it as a challenge that now our course curriculum, now our teaching in the colleges and even in the universities is to train them not for job seeking, but to create an entrepreneur among themselves so that they can become a job creator, not for themselves, but for the society. And आपको मैं ये बताना चाहूँगा राजीव जी कि यही innovation के ऊपर में universities are working, like you gave a very good example of the Haryana Skill University where Raj Nehru ji is the Vice Chancellor. So even Ambedkar University in this year, अभी जो आने वाला जो सत्र है उसमें हमने इस COVID-19 को देखते हुए ही खास तौर से जो MBA का प्रोग्राम होता है, MBA एक नॉर्मल तो चल ही रहा है, MBA जनरल प्रोग्राम is already going on. Our Vice Chancellor initiated and they carried out, we have already launched a program of MBA IEVD, that is MBA Innovation, Entrepreneurship and Venture Development. So this is where the need of the university also has to, or the colleges also has to adapt. And rightly said, even Ambedkar has a Atal Incubation Center where we have a 10 crore of the grant with us. And now at present around 10 plus incubatees are already working at Ambedkar. And मैं अभी इसको ऑफिशियली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी कल परसों ही हमारी बात हो रही थी, तो जो लिस्ट की है हमने जहां पे हम इंक्यूबेटीज को अलाउ करने की बात सोच रहे हैं, तो उसमें हंसराज कॉलेज का भी एक नाम है. क्योंकि हमारी जो वाइस चांसलर हैं उनको मैडम ने किसी कमेटी में अपने साथ किसी वो हिंदी की कुछ उसमें रखा है, तो कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे से बताया, तो मैंने कहा कि मैम मैं भी हंसराज का एलुमनाई हूँ, तो we have thought of that there is an open platform now for the Hansraj College कि their students can come over there and they can have a incubatees at the Atal Incubation Center of the Ambedkar University. It will be formally carried out. So just I'm not making an official announcement, but this is how, see, this is how the integration and any other things have to be carried out. Very beautifully, rather I will say 10 mantras of बिजनेस. मुझे तो ये लगने लगा इनके 10 मंत्रास, वो जो एक्टिव प्रेशर्स पॉइंट्स की बात करी थी राजीव जी ने, वो 10 मंत्रा सोच के, और जब इन्होंने बोला कि हम लोग एक उसमें चैनल में फंस जाते हैं कि हम नौकरी में घुस जाते हैं तो नौकरी ही करने लग जाते हैं. मेरे को तो कई बार इनकी बातें लग के ऐसा ना हो कहीं आपको फिर देखिएगा कहीं ऐसा ना हो मैं तो रिस्क ले लूंगा और मैं एंटरप्रेन्योर बन के कुछ ना कुछ खोल दूंगा, लेकिन देन यू हैव टू सपोर्ट मी, बिकॉज इनकी बात सुन के मुझे लगता है कि वाकई अभी तक 25 से 30 साल की जो नौकरी करी है, क्या वो हमारी नौकरी वाकई हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए जो हमको करना चाहिए. सो रियली एन इंस्पायरिंग talk and inspiring thoughts. Now on behalf of all of us present over here, I would like to give you a formal
vote of thanks. You have given us of your valuable time, Rajiv ji. You have always been standing with us. ऐसा नहीं है कि राजीव जी नहीं खड़े होते हैं, वो ऐसा आज ही आए हैं. जब कभी भी हंसराज कॉलेज एलुमनाई की बात होती है या हंसराज कॉलेज एल्मा मैटर की बात होती है, राजीव चावला is a one name where you will find, and there are others also. This is first interaction of an alumni on this platform, and so that is why I again extend our heartful thank to you for sparing such a valuable time, and thanks goes to our patron Professor Rama, क्योंकि उनके नेतृत्व की तो बात ही नहीं करता मैं, रादर मैं बोलता हूँ कि उनकी डांट के बगैर तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं. यहाँ तो उल्टा है. आज भी हमारी जो प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय हैं, वो हमें जब डांट लगाती हैं तभी हम दौड़ना शुरू करते हैं. हम अपने सोच को रख के अभी बातें कर रहे होते हैं तो मैडम का फोन आ जाता है, महेंद्र जी ये शुरू कीजिए, जी ये शुरू कीजिए. Am I right, महेंद्र जी? बिल्कुल ऐसे ही. Very true. I fully corroborate. और अगर उस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी भी ढील बरतते हैं तो मैडम हमें बिल्कुल एक चैलेंज कर देती हैं, क्या रे तुम्हारी एलुमनाई क्या कर रही है भाई, किस लिए नहीं आते, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है. तो आई एम रियली इंडेप्टेड एंड थैंकफुल to our patron. She is our leader, she is our visionary, she is our everything, and thanks Professor Rama to be over here in our entire session, and also giving us a platform with the Hansraj College, enabling the alumni to come over here. ये मैडम बोल जरूर रही हैं कि ये प्रशांत, महेंद्र जी, नितिन और वो हमारा दिनेश चोपड़ा और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का ये आइडिया है, बट लेट मी क्लियर ओवर हियर विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट महेंद्र जी and even with the permission of Prashant that the seed has been sown by Professor Rama. She only accepted said, also. Yeah, she accepted also. Yeah, she only gave us a path कि तुम लोग जो है कोविड के अंदर में बैठ के खाली ऐसे बैठे मत रहो, तो यू आर द एनर्जी. एंड वो हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर कितनी तरंग है, हमें आज भी हमारे अंदर कितनी एनर्जी है. So that is how she makes us vibrate and we carry out further. So really a grateful thanks to our principal as well as patron of the Alumni Association, Professor Rama. Thanks goes to our president and all the office bearer and executive members also. Thanks goes to Chetna and thanks goes to the IT team of the Hansraj College, who had been the backbone and always standing for giving us a platform. And above all, special thanks to my dear friend and my senior Prashant Doshi. ये वो एक शख्स है, ये एक वैसा व्यक्ति है जो सबका ना न्यूक्लियस होता है हमारे ग्रुप का, एलुमनाई का. इसको बस एक बार टर्न कर दो तो उसके बाद he has, let me share it with you, we are not going to end over here. This is the start, and almost I think 32 speakers he has already fixed. I was amazed when I came to know 32 people, including Pallav Bagla, ICP Keshri, Podar, Anand, Prashant, ADGP Law, and lots of people. So I think we are going to have a very good chain and very good thought process in this alumni talk, and a seat sown by our honorable and respected principal, Professor Rama. So thanks to Prashant and thanks to all the person, thanks to all my alumni, thanks to all the other people, and special thanks to the faculty of the Hansraj College. मैंने अभी चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में देख रहा था, देयर आर नंबर ऑफ फैकल्टी हु हैव नॉट बीन, हु आर नॉट द एलुमनाई ऑफ Hansraj, but they have been attending this and interacting with the observations and thought process of Rajiv Chawla. So really thanks to all of them, and with all these words I say that it's my thanks from the heart, and we keep moving ahead under the patronage and leadership of our principal and our president and the entire office bearers and executive member. One request is there, Dr. Chetna is here, so one request is there that this link of Facebook, it is with me, we are sharing it with the other people also. If the recording of this Zoom is also available, so that it can be shared with the entire members also, entire alumni base also, and that will help us. And next session, next talk or next webinar series, I should say, the alumni series, which the Prashant is going to give us the another name. So if it can be carried out and the number of series can be done, so that will be the great on the part of the alumni association. Yes, sir. Thank you very much, Rajiv. I once again thank you, Mr. Rajiv.
I am giving you a formal Mr. Rajiv. मुझे तो हॉस्टल के डेज याद हैं जब राजीव सर वो कॉरिडोर में घूम के आवाज लगाते थे. So thanks a lot, Rajiv sir, once again, and thanks everybody. Thank you. Thank you so much. Nitin, Thank you. Nitin, special Thank you, thanks to Rajiv. you also. Thank you, Nitin, Nitin special ji. thanks to you also. अरे Thank you, मैम मैं तो Rajiv. पार्ट ऑफ दिस हूँ तो थैंक्स टू यू. Thank you very much. Thank you very Thank much. you, Rajiv ji. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Have a good day. Thank you. Principal ma'am, thank you very much. Thank you. Honored. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. you. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you.